What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is 19th November. Today is Wednesday ahead of tomorrow's Sensex weekly expiry, and finally Nifty has given a close above 26,000 levels. Over the last 4 or 5 sessions, every time Nifty came to 26,000, the sellers used to get activated and Nifty used to see a dip of 100 to 150 points. But today, finally 26,000 level has been breached. And today's major gains came from IT sector, where Nifty IT closed almost 3% in green, which was the major and biggest contributor for today's rally. So tomorrow is Sensex expiry and today was Sensex 1DTE. The premiums were not that attractive. कल के वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि प्योरली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशन नहीं है. द स्ट्रैडल ओपन समवेयर अराउंड 530, it dipped to 470, and after that the straddle did not crush at all. In fact, over the last 1 hour, the straddle gained from 430 levels back to 470 levels. So this 470 straddle is probably one of the highest closing over the last 5 weeks. So tomorrow's Sensex expiry will be very interesting because in spite of Nifty giving a breakout above 26,000, the synthetic future on Sensex is still indicating 100 points lower. And today, even the commodities were on the run, both silver and gold closing in good green today. So कल के लिए we are almost getting 480 points of straddle premium. तो कल का open both from the spot perspective and from the wall perspective will be very important. Let's get to the terminal and let's analyze our plan of action for tomorrow's expiry. All right. So daily time frame पे the markets are at a very important crucial juncture. So हमने डिस्कस किए थे कि द मार्केट्स वॉट एवर जो डिप हुआ था 25,200 के आसपास, इट वाज काइंड ऑफ अ रीटेस्टिंग. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ एंड यहाँ पे जो हमको विक दिख रहा था, सो दिस विक वाज बेसिकली अ शेकआउट. तो जब मार्केट ने इस वीक को दिखाया तो सिंस देन आई हैव बीन सेइंग दैट दिस इज अ शेकआउट एंड यहाँ से मार्केट्स ऊपर आने वाला है. बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट वी वुड बी टचिंग 26,100 विद इन द नेक्स्ट 6 or 7 सेशंस. बट हियर वी आर somewhere around 26,100 के आसपास हम लोग होवर कर रहे हैं, एंड आइडियली आई वुड एक्सपेक्ट दिस रेजिस्टेंस टू बी टेकन आउट यूजिंग अ गैप. एक गैप अप के साथ अगर ये हाई रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है, देन थोड़ा बहुत पुल बैक आके एक रिटेस्ट करके द मार्केट्स कैन स्टार्ट हेडिंग हायर. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड द सेंसेक्स वॉल्स बिहेव्ड लाइक वेरी डिफरेंटली टुडे कंपेयर टू लास्ट 2 or 3 1DTs. सो इफ वी गो इनटू द वॉल चार्ट एंड इफ वी सेलेक्ट सेंसेक्स, यू कैन सी दैट कल 600 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था एंड टुडे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऑफ ओवरनाइट क्रश. कुछ ज़्यादा गैप भी देखने को नहीं मिला, सो द पोजिशनल ट्रेडर्स दे वुड हैव गॉट अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश. बट 500 वाज प्रेटी लो फॉर अ 1DT कंसिडरिंग लाइक हाउ वाइड द मार्केट्स आर मूविंग. सो यहाँ पे कल भी मैंने क्लियरली बताया था कि अगर 500 के आसपास, इवन 530 के आसपास भी अगर मार्केट्स और स्ट्रैडल ओपन होता है, देन प्योर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड वुड बी अ नो फॉर मी. एंड टुडे as the markets opened somewhere around 500, it was definitely out of picture trading purely non-directional trades. But मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था, कुछ mean reversion kind of a trades planned थे, but only from the put side, right? And throughout the day, yes, there was a 50-point crush within the first like 1-2 hours, and after that the straddle constantly gained. थोड़ा बहुत फिर से dip हुआ, but towards the end of the day it again gained to close at somewhere around 465, 470. So to be honest, this is a very good straddle price for tomorrow's expiry. तो most probably कल 400 के आसपास फिर से positional writers को थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाला है कल, and we can expect let's say 60 to 70 points of a crush at the open. So 390, 400 के आसपास straddle खुलने वाला है मेरे हिसाब से. And even 400 points of straddle is a decent bet, right? So अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे सेंसेक्स की, तो yes, मैंने क्लियरली बताया था कि इफ द मार्केट्स आर अप्रोचिंग दिस लेवल, आई विल नॉट टेक अ मीन रिवर्शन ट्रेड. मैंने ये बताया था कि अगर गैप डाउन खुलता है एंड देन प्रॉब्ली आई विल टेक 1 मीन रिवर्शन ट्रेड एट द कॉल साइड, एंड यहाँ पे पुट्स के साइड पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड लूंगा. बट इफ द मार्केट्स आर समवेयर अराउंड दिस लेवल, आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉल शॉट्स नहीं लिया, एंड दैट वाज काइंड ऑफ दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन. सो यहाँ पे देखो, मार्केट्स निफ्टी भी 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड सेंसेक्स भी 85,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है. सो टुमारो बीइंग सेंसेक्स एक्सपायरी,
again 85,000 should ideally act as some sort of a magnet, some sort of an anchor point around which the markets will be volatile. तो कल के लिए मेरे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो एज अ शॉर्ट गामा ट्रेडर, मेरे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो बन जाएगा इफ द मार्केट्स ओपन समवेयर बिटवीन 84,900 और 84,800. तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है तो मेरे लिए एक ट्रेडेबल रेंज बन जाएगा, 300 points on the upside and 300 points on the downside, and with somewhere around 400 points straddle pricing. So this could be easily managed tomorrow. But if we open a big gap down, then I'm expecting the bounce from this level, because यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने ऊपर गया है एंड यहाँ पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है. सो आइडियली दिस लेवल शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एटलीस्ट कल के एक्सपायरी के लिए दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. तो इफ अट ऑल वी ओपन अ बिग गैप डाउन, then also it's a favorable scenario in a way that I'll be shorting some CTM puts or ATM puts with this as the स्टॉप लॉस लेवल ऑन स्पॉट. तो एक ATM पुट्स भी मतलब थोड़ा बहुत स्पाइक होने वाला है एंड CTM पुट्स भी यहाँ पे स्पाइक होने वाला है. तो दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू एक्चुअली गो लॉन्ग. बट इतना ज़्यादा गैप डाउन नहीं मिला, थोड़ा ही गैप डाउन मिला, तो देन ऑफ कोर्स आई विल बी टेकिंग 85,300 as the resistance, because 85,300 on Sensex would translate to 26,100 on Nifty. अगर आप जाके चेक करोगे तो 26,100 has been a resistance multiple times. So यहाँ पे ओपन होता है 84,900 के आसपास भी ओपन होता है तो 85,000 स्ट्रैडल विल बी अ गुड बेट रिस्क रिवॉर्ड वाइज. एंड थोड़ा बहुत नीचे खुलता है देन प्रोबेबली अ डायरेक्शनल बेट वुड बी गुड. बट व्हाट इफ मार्केट ओपन्स विद अ बिग गैप? अगर मार्केट्स एक बड़ा गैप अप के साथ ओपन होता है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू पुल बैक टू टुडेज हाई, एंड वहाँ के बाद एक इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो जाता है एंड देन प्रोबेबली विल बी बेटर ऑफ ट्रेडिंग दैट इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट. एंड जैसे मार्केट एक पुल बैक दे देता है आज के हाई तक, then that would mean that the high of the opening tick would act as a resistance for the entire expiry, and जब अगर वो high टूट जाता है then we can expect some sort of a breakout post 12 PM. So ये मेरे लिए 3 scenarios बनने वाला है, and tomorrow's expiry I am expecting probably a smoother expiry, relatively smooth expiry. अभी देखो when I say relatively smooth expiry, ऐसे ज़माना तो चला गया जहाँ पे like आप ऑप्शन बेच दोगे एंड स्ट्रैडल बेच दोगे एंड शाम के टाइम पे आप आओगे सिर्फ प्रॉफिट्स कलेक्ट करने, उस जमाना तो चला गया. व्हेन आई से रिलेटिवली स्मूथर एक्सपायरीज, ऐसे एक्सपायरी तो नहीं होगा जहां पे पहले कॉल्स 6-7 गुना हो जाएगा, बाद में पुट्स 6-7 गुना हो जाएगा, फिर से कॉल्स 6-7 गुना हो जाएगा. वैसे एक्सपायरी होने का चांस कम है बिकॉज द प्रीमियम बेस इज प्रेटी हाई एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन पॉइंट्स बनाते बनाते मार्केट्स गया है. इवन आज भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम व्हेन द मार्केट्स केम हियर इट रेस्पेक्टेड द लेवल, एंड यहाँ के उसके बाद यहाँ पे मार्केट्स ने फिर से इस लेवल को रेस्पेक्ट करके दिस वाज आल्सो अ CPR लेवल. अगर आप जाके चेक करोगे तो दिस इज अ CPR लेवल. यहाँ से एक कॉन्फ्लुएंस फैक्टर था, दिस वाज अ स्विंग एंड दिस वाज अ CPR. यहाँ से बाउंस होके एंड अगेन एक पुल बैक दिया एंड इस लेवल पे पुल बैक देके मार्केट्स प्राइस एक्शन पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते करते ऊपर जा रहा है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो considering the fact that price action is being respected and markets ऐसे बड़े बड़े रेंज के कैंडल्स नहीं बना रहे बट एक्चुअली इनफैक्ट ग्राइंड कर रहे ऊपर, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ डिसेंट प्रीमियम बेस फॉर टुमारो अनलेस इफ वी ओपन समवेयर अराउंड 350 विच इज अ हाईली अनलाइकली सिनेरियो. अगर 350 के आसपास ओपन हो जाता है तो देन अगेन दैट एज दैट वी माइट गेट विथ हायर प्रीमियम बेस दैट इज गॉन. सो प्रोबेबली वी माइट हैव टू वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड देन प्रोबेबली स्टार्ट बिल्डिंग अप पोजिशंस. बट एनीथिंग अबव 400 in my opinion is a decent a premium base to start actually trading short gamma. All right, so these are my scenarios, guys. I'll see you again after tomorrow's Sensex expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.